Welcome to the next part of subnetting. Okay, and in the last session, in the last lecture, we have gone through the reason behind subnetting. Okay, and we have gone through diagram in which let me show you with that only. कहाँ पर है डायग्राम हमारा ये वाला डायग्राम था ठीक है so if you remember then in this particular diagram we have gone through the reason behind subnetting. Okay, why the subnetting is required. So we have gone through we considered two routers R1 and R2. Okay, and after that we have some network which are connected to these routers. Okay, so I have considered that to this router one network to this particular interface, one network to this interface, and one network to this interface. Okay, and the router 2 again it is having three interfaces, three ports. Okay, तो इनको मैंने connect किया ठीक है. After that I'm having this network 1 2 3 and 4. ठीक है, the numbers which you can see which are circled. Okay, number 1 2 3 4 एक और नंबर यहाँ पे सर्कल्ड है तो उसको हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के रिक्वायरमेंट्स हैं. ओके, so these are the requirements basically. These are the requirements. This is again the requirement and this is again my requirement. Okay, so to all the networks we cannot assign the same IP address. Okay, so for that what we have done, we have given this IP address which belongs to class C IP address. Okay, 192.10.2.2, and for that we have calculated the network ID. We know that how to calculate and how to find the network ID for an IP address, and what will be the broadcast ID and the number of users, number of hosts which are possible from that particular IP address. Okay, so we came to know that 254 IP addresses are possible, and we were having the requirement of 10 computers only 10 computers का requirement है. Okay, 254 minus 10 अगर कर भी देते हैं तो बचते हैं 244, which is again a wastage of IP addresses. So this was the first हमारा observation X. उसके बाद में फिर in the second network again we were having the requirement of 30 computers, but we have around 21 lakhs of IP addresses which are possible by this particular IP address which belong to class A. Okay, and 21 लाख minus 30 तो समझ लो almost 21 लाख हमारे फिर भी बचते, which is again a huge loss. Okay, consider this is my Y observation. And again in the fourth network I was having 40 computers per requirement. I was having B class of IP address. So after calculation I got 65,494 IP addresses are getting wasted. Okay, so consider it as a Z observation. Okay, so out of all these observation I can conclude that if I will assign different IP addresses on the different network, then I will be having lot of wastage of IP addresses. Okay, तो इसके लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, चलो भाई आते हैं सबनेटिंग पे. ठीक है, अच्छा सबनेटिंग से पहले थोड़ी सी एक और हम लोग देख लेते हैं. चलो अब आ गया है रेड का टाइमिंग. ठीक है, तो भैया इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है. ठीक है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और ऐसे हमारे जो आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं तो उनको हमको क्या करना है, रिजॉल्व करना है. ओके, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व. अच्छा लेट मी सी फर्स्ट whether everything is okay or not. Am I audible properly? Someone please respond. Yes, हाँ sir. सर। Yes. Okay, thank you so much. Okay, uh, 20 still joined अभी. प्रेजेंटेशन भी है, रिकॉर्डिंग भी है, एक बार चेक करना होता है एक्चुअली. तो कुछ नहीं, in order to resolve this issue we can have multiple options. Okay, तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3. सबसे पहला ऑप्शन तो ये है अगर अगर कभी आपको इसको रिजॉल्व करना है तो आप एक काम करो, आप प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ करो. ठीक है, आप प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ करो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए आपको फिर अलग से लेना पड़ेगा और उसका अलग प्रोसीजर. तो ये हम लोग ज़्यादा, ये लोग बहुत बहुत कम लोग इसको प्रेफर करते हैं. सेकंड, या तो आप जा सकते हैं IPv6 पर. ठीक है, जो कि नेक्स्ट वर्जन है आपकी IPv4 का, एंड जो कि आपका 128 बिट का आईपी एड्रेस है. लेकिन इसको भी यूज़ करना थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज नॉट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म्स हैव अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर technology. IPv6 is not implemented in all the organization.
not all the organization or firms have adopted this particular technology. Okay, so compatibility may be an issue, आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग आगे रखते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास में है सबनेटिंग का। ठीक है, तो सबनेटिंग से हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सबनेटिंग से हम अपने नेटवर्क को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इट्स अ लॉजिकल डिवीजन, इट्स नॉट अ फिजिकल डिवीजन ऑफ द आईपी एड्रेस, इट इज द लॉजिकल डिवीजन। अगेन आई एम टेलिंग यू, और मैं आगे चल को आपको ये बताऊंगा भी कि लॉजिकल क्यों है। तो इट्स अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ आईपी एड्रेस। ओके, तो लॉजिकल डिवीजन करेंगे तो जो जहां वही रहेगा, जैसे हम लोग अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में करते हैं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, हमारे पास में ये हमारी बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ठीक है, हमने एक एक बंदा यहाँ का लिया, ठीक है, एक बंदा यहाँ का लिया, ठीक है, एक बंदा हमने यहाँ का लिया, ठीक है, और तीनों को मिला के एक नेटवर्क बना लिया। ठीक है, इवन दो दीज पीपल्स आर स्टेइंग एंड एट देयर फ्लोर ओनली, ये आपका टेस्टिंग फ्लोर है, ये डेवलपमेंट फ्लोर है, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन फ्लोर है। ठीक है, यहाँ पर जो लोग भी काम करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में काम करते हैं, यहाँ जो लोग काम करते हैं वो आपके डेवलपर्स हैं, यहाँ जो लोग काम करते हैं वो आपके टेस्टिंग वाले हैं, और जो ऊपर है वो आपका एडमिन है या ओनर है। ठीक है, चलो ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। और नीचे कैंटीन है, कैंटीन भी तो ज़रूरी है। ओके, सो ये आपकी 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 कंपनी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने क्या किया, आपने आपको एक नया प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यू नीड वन डेवलपर, वन टेस्टर एंड वन फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। ओके, तो आपने क्या किया, अपनी टीम बनाई और तीनों को अपनी अपनी जगह से उठाने के बजाय आपने क्या किया, तीनों को उनकी जगह पर रहने दिया, और आपने उनको उनको क्या किया, वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू यूजिंग यूजिंग सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आपने उनको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो एक एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट के लिए आपने तीनों को कनेक्ट किया, तीनों को एक नेटवर्क में डाला, उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल फ्रॉम विच आई कैन लेट यू नो व्हाट इज द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वैसे ही ये आपका लॉजिकल डिवीजन है, वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड आवर आईपी एड्रेस फिजिकली। आपका आईपी एड्रेस 192.168.2.1, तो इसको आप लोग बीच में से तोड़ेंगे और कुछ इधर करेंगे कुछ इधर करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, हम लोग फिजिकली डिवीजन नहीं करने वाले हैं, हम लोग लॉजिकल डिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप दैट कि आप लोग को पिछला वाला एग्जांपल समझ में आया होगा जो हम लोगों ने किए थे कल। ओके, और इसके 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 बारे में भी आपको आइडिया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, अभी हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। So we have taken this particular IP address, that is class C IP address and class A IP address, and we came to know that how to calculate network ID, broadcast ID, number of usable host. Okay, so everything is known to you. Okay, now with the help of one example, let me start with this. Okay, मैंने एक्चुअली अपने वीडियोस के स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हूँ, बिकॉज सो दैट आपको मैं बता सकूँ, बिकॉज कोई कोई हो सकता है कभी कभी कोई पॉइंट मिस हो जाता है, तो उसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हूँ। और मैंने चारों वीडियो जो मेरे सबनेटिंग के आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग, क्लासफुल एड्रेसिंग एंड देन सबनेटिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें 2-3 एग्जांपल के साथ में लिया हूँ, तो वो आप लोग सारी चीज़ आप लोग कर सकते हैं। सब मेरे क्या बोलूँ, मेरे वीडियो जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है उसके ऊपर जो वीडियोस है उसके अंदर ये सारे वीडियोस है, उसी 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 मतलब उसी के स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ। अभी आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ा सा इमेज की थोड़ा पहले बता दूँ। अगेन अगेन यहाँ पर वही चीज़ है, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा इसमें डीप में नहीं लेके जाऊँगा। अगेन वी हैव कंसिडर्ड टू राउटर्स ओवर हियर, एंड दिस इज नेटवर्क नंबर 1, दिस इज नेटवर्क नंबर 2, नेटवर्क नंबर 3, नेटवर्क नंबर 4। अगेन वही चीज़ मैंने बताया हूँ, इसके लिए मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता नहीं रहा, डायरेक्टली खाली इमेज से बता रहा हूँ। सो आई वॉज हैविंग सम, हाँ, यहाँ पर मैंने सबके अलग अलग नेटवर्क लूँगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 192, सॉरी, तो 190.20.10.2 मैंने इस नेटवर्क को दिया। ये मैंने इमेज कंप्लीट लिया नहीं हूँ एक्चुअली, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ देखो, ये वाला इमेज है कंप्लीट। ठीक है, तो फॉर द नेटवर्क नंबर 1 आई टुक दिस आईपी एड्रेस, दैट इज 190.20.10.2। ओके, तो उसके लिए आपका नेटवर्क का आईडी क्या रहेगा, यू हैव टू मेक द होस्ट पार्ट एज 0 बिकॉज इट बिलोंग्स टू क्लास बी आईपी एड्रेस 190.2
ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। सो फॉर दैट 16 बिट्स आर ऑफ होस्ट, 16 बिट्स ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो 16 बिट्स आपके एज इट इज रखे, नेटवर्क बिट को हम लोग ने एज इट इज रखा और होस्ट बिट को जीरो कर दिया, तो इट बिकम्स द नेटवर्क आईडी, ओके। ब्रॉडकास्ट आईडी 190.20.255 दो जो आपके ऑक्टेट है उसको उसको आपने 255 किया। तो अगेन यहाँ पर भी वेस्टेज दिखाया है कि यहाँ पर आपके अराउंड कुछ 2:16 - 2, तो ये आपके अब अंदाज़ा लगा लो। तो इस इतने सारे यहाँ पर आपके आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ मैंने वेस्ट करके बताऊँ, यहाँ पर भी वेस्ट हो रहे हैं बहुत सारे आपके आईपी एड्रेसेस, यहाँ पर भी वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर भी वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वैसे मैंने और एक एग्जाम्पल लेके अपने वीडियो में बताया, तो वही स्क्रीनशॉट अगेन कैप्चर हुआ है। तो ये जो हमारा वेस्टेज है इसको हमको कम करना है, ये जो वेस्ट है इसको हम लोग को रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो इस आईपी एड्रेस है, जो आप लोग आईपी एड्रेस देख सकते हैं, इसी आईपी एड्रेस को क्या करेंगे हम लोग, लॉजिकल डिवीजन करेंगे, ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर कब से बोल रहे लॉजिकल डिवीजन, लॉजिकल डिवीजन, अभी तक लॉजिकल डिवीजन किए नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपना एक नेटवर्क रेडी कर लेता हूँ, जो सेम नेटवर्क है पहले मैं एज इट इज ले लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सो वी आर हैविंग, मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, तो दिस इज माय वन राउटर, दिस इज माय अगेन सेकेंड राउटर, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक नेटवर्क है, इसको मैं ऐसे शो कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ओवर हियर, यहाँ पर भी मेरे पास में कुछ कंप्यूटर्स है कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा खाली सेपरेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पर भी नीचे भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ मेरे पास में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, एंड द रिक्वायरमेंट जो है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कितना कितना है, ठीक है। ये हो गया, ये आपका है राउटर नंबर 1, ठीक है। दिस इज राउटर नंबर 2। अब ये मोटे मोटे पेन नहीं चाहिए हम लोग को, थोड़ा सा बारीक वाला पेन चाहिए, ओके। और ये जो हमारे इंटरफेसेस है यहाँ पर, ये समझ लो हमारा एक्स इंटरफेस, ये वाई इंटरफेस, ये जेड इंटरफेस। R2 का ये हमारा है पी इंटरफेस, ये क्यू इंटरफेस, ये पी क्यू आर इंटरफेस, ठीक है। तो हमारे तीन तीन इंटरफेसेस है। ये जो आपका बीच में जो है ना, ये भी एक नेटवर्क, बिकॉज राउटर हमेशा दो नेटवर्क्स के बीच में होता है, ठीक है। दो नेटवर्क के बीच में राउटिंग का काम करता है, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंसीडर अगेन दिस इज अगेन अ वन नेटवर्क, ठीक है। so I can say this is my network number 1, this is my network number 2, okay, this is my network number 3, this is my network number 4, okay, and this is my network number 5, okay। तो 5 नेटवर्क हो गए मेरे। अब यहाँ पर मेरे पास में कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। सी द रिक्वायरमेंट 10, 30, 20, 40, ये भी रिक्वायरमेंट मैं ले लेता हूँ। तो आई हैव 10 कंप्यूटर रिक्वायरमेंट विच आई विल केप्ट इन द स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है इससे कभी कभी। 30 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है, सो आई कैन पुट इट 30, ओके। यहाँ पर कुछ 20 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जांपल सेम रहने की वजह से लिया हूँ और कुछ नहीं। यहाँ मेरे 40 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो भाई साहब ये इतना नेटवर्क आपको अभी समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में 2 राउटर्स है, एंड दीज राउटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वन मोर नेटवर्क, दैट इज N5। एंड ऑन द इंटरफेस R1 के X इंटरफेस पर N1 है, Y इंटरफेस पर N2 है। R2 दैट इज राउटर 2 के Q इंटरफेस पे एक नेटवर्क थर्ड है, और नेटवर्क 4 आपके R इंटरफेस पर, ठीक है। एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, ओके। हमारे पास में हम लोग ने क्या किया है, वी हैव परचेज अ क्लास सी आईपी एड्रेस, यू कैन सी ओवर हियर। हम लोगों ने एक आईपी एड्रेस परचेज कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं आईपी एड्रेस का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर 197.197.10.10.0, ओके। तो हम लोग ने ये आईपी एड्रेस ले लिया है, ठीक है। तो इसको जरा मैं अच्छे से बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमको काम आने वाला है। तो ये आईपी एड्रेस हम लोग ने कर लिया है अभी परचेज, और इसको हम लोग को क्या करना है, अब इसका लॉजिकल डिवीजन करना है, ठीक है। एक बार देख लो, और 20 से 31 हुए भी, ओके। अब जो हम लोग इतनी देर से इतने दिनों से जो सुनते आ रहे थे ना, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब यहाँ पर सब लोग को होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ओके। सो कोई बात नहीं, चलो। हमारे पास में कुछ स्टेप्स है जो हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि वी हैव टू फाइंड द रिक्वायरमेंट, ओके। वी हैव टू फाइंड द रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 197.10.10.0। सो दिस इज माई आईपी एड्रेस। एंड आप क्या बोलते हो, ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, बोलो जल्दी। 197 क्लास सी का है, ठीक है।
तो ये हमारा क्लास सी का आईपी एड्रेस है, इसको मैं अच्छे से यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो क्लास सी के आईपी एड्रेस के अंदर हाउ मेनी बिट्स बिलोंग टू द नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स बिलोंग टू द होस्ट पार्ट। चलो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। कभी भी आईपी एड्रेस को 4 सेक्शन में 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर लेने का। और यहाँ पर आपका जो क्लास सी है उसके अंदर जो 3 पार्ट होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं। मतलब ये आपका नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, खाली एक ऑक्टेट जो होता है आपका होस्ट का होता है, ठीक है। So it means that you are having around 24 bits belong to the network component and 8 bit belong to the host component. So 8 8 8 8 just for your understanding, not included, okay। अब इसमें आप एक काम करो, जो होस्ट पार्ट है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। पहला स्टेप ये बोला हूँ, देखो मैंने यहाँ पर स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट द होस्ट पार्ट इनटू बाइनरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर मुझे जगह बहुत कम मिल रही है, इसमें थोड़ा सा मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को अभी जगह और चाहिए लगेगी। ये इसको माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है। यार अब हुआ ना बराबर। आप लोग को नजर आ रहा है नहीं सब अच्छे से? कोई एक जन बताए हाँ ज्यादा सर। छोटा तो नहीं हुआ? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे सबसे पहला काम हम लोगों को काम क्या करना है, हमारे जो नेटवर्क बिट को एज एज इट इज रखना है, और होस्ट पार्ट को हम लोग को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं, 197.10, ज़्यादा बारीक तो नहीं हो गया, 197 197.10.10 डॉट। अब इसको क्या करना है, हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, यू कैन जस्ट बस मैं बोलते जाऊंगा और वो उसको मैं करते जाऊंगा, ठीक है। दैट जीरो पार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो जीरो जो डेसिमल है उसका बाइनरी आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो 80 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, ओके। फर्स्ट स्टेप होने के बाद में आप बोलते हैं कि अभी वी हैव टू सर्च फॉर द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ओके। सो नाउ टेल मी what we have done, let me write over here, convert, ये बहुत, मेरा टेबल बहुत हिल रहा है, convert host part h part into binary, ठीक है। राइटिंग बहुत खराब आ रही है इसमें, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो वी हैव कन्वर्टेड द होस्ट पार्ट इनटू बाइनरी, ठीक है। अब सोचो अगर हमारे पास में क्लास बी का आईपी एड्रेस होता, तो 2 ऑक्टेट्स वर कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी पार्ट, ठीक है। और अगर हमारे पास जीरो के बजाय अगर वो 1 होता तो बाइनरी कुछ और होता। अगर जीरो के बजाय कुछ 25 30 ऐसा कुछ होता, तो वो भी हमारा बाइनरी में एज इट इज कन्वर्ट होता, ठीक है। अभी अभी यहाँ पर हम लोग के पास में वो मैं पता नहीं, ओके, चलो करते हैं। We have to search for the maximum requirement, we have to search for maximum number of host required, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क है आपके पास में, ये आपका नेटवर्क नंबर 1 है, लेट मी मार्क इट। ये आपका नेटवर्क नंबर 2 है, सॉरी बहुत डिस्टर्बेंस होता है। Okay. So we have to search for the maximum requirement. Okay.
out of these network, that is network number 1, this is network number 2, this is network number 3 and this is network number 4. अब बताओ मुझे नेटवर्क नंबर 1 2 3 4 आउट ऑफ दीज नेटवर्क विच नेटवर्क इज हैविंग मैक्सिमम होस्ट का रिक्वायरमेंट। ओके, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पर आपके 10 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है, यू हैव 30 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट, यू हैव 20 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट एंड यू हैव 40 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हमारे यहाँ पर 40 है। ठीक है, तो चलो कंसिडर करके रख लो, वी हैव नेटवर्क नंबर 4 विच हैज द रिक्वायरमेंट ऑफ 40 कंप्यूटर्स। ओके, इतना आप लोगों ने लेकर रख लिया। उसके बाद में आपको एक स्टेप करना है, आपको अभी कैलकुलेशन करना है, बिकॉज आप जब डिवीजन करेंगे तो आपका जो स्लॉट रहेगा वो उसकी साइज क्या रहेगी। अगेन सॉरी। ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है कि हमारे जो स्लॉट बनेंगे, हमारे जो सबनेट्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा बड़ा नेटवर्क, ठीक है, कोई हमारा एक आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसमें हर एक में कितने होस्ट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि सर्च फॉर द मैक्सिमम होस्ट रिक्वायरमेंट, तो ये इसके लिए कि हमारा जो मैक्सिमम है वो 40 का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 40 का रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग को हमारे सबनेट कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ आपको। स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, 2 बिकॉज इससे आप क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ होस्ट आप लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2 - 2 भी आप लोग करते हैं, बिकॉज आपका नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी आप लोग निकाल दो वहाँ से। ठीक है, वो दोनों आप निकाल देंगे, तो 2 - 2। ओके, और ये जो हमारा 2 - 2 है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। क्यों, बिकॉज हमारा जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो 40 से ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब जो हमारा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 40 है, और जो हम लोग सबनेट बनाने वाले हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा 40 से ज़्यादा होना चाहिए, 40 या 40 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप लोग टेस्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे टेस्टिंग, से n इक्वल्स टू 1, से n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। ठीक है, आप लेते जाओ और कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, तो कैलकुलेट करता हूँ मैं 2 - 0। अगर आप n इक्वल्स टू 0 अगर पकड़ेंगे तो चलो कर लेते हैं, n इक्वल्स टू 0 अगर कंसिडर करते हैं तो 2 - 0 एनी पावर 0 1 1 - 2 नहीं हो रहा रिक्वायरमेंट, n इक्वल्स टू 1 करेंगे तो 2 - 1 2 2 - 2 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं हो रहा है। n इक्वल्स टू 2 2 करेंगे 2 - 4, अरे बोलो, 2 - 4 2 becomes 4 4 - 2 2 2 greater than equal to 40। ये भी हमारा ऐसे कहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग को, आई थिंक n इक्वल्स टू 6 पे आने वाला ये। चलो n इज टू 6 हम लोग पकड़ते हैं, मतलब n इक्वल्स टू 6 लेते हैं, सो इट बिकम्स 2 - 6। ओके, तो 2 - 6 आपका कितना होगा, बोलो, अरे बोलो जल्दी, कमाल है यार, रिस्पॉन्स नहीं करते आप लोग। n इक्वल्स टू 6 बोल रहा हूँ मैं, कितना होगा इसका, 2 - 6 - 2, बोलो, 64 64 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। आप लोग मैसेजेस करेंगे, मैं मैसेज पे नहीं जा सकता अभी, तो 64 -2 इट बिकम 62 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब आपके जो सबनेट जो बनेंगे वो कितने होस्ट के बनेंगे, 62 के बनेंगे, इनके मिनिमम 62। अच्छा, इससे आप अगर कम के करेंगे तो 40 के नीचे आ जाएगा आंकड़ा, तो हमको वो नहीं चाहिए। तो इसके लिए वी हैव कंसिडर्ड द वैल्यू फॉर n इक्वल्स टू 6 एंड इट बिकम 62 नाउ। ठीक है, तो 62 का सबनेट आप बनेगा। ठीक है, ये भी चीज़ हमको क्लियर हो गई। तो 62 के हमारे सबनेट्स बनेंगे, और 62 के सबनेट्स में हमारा नेटवर्क 4 भी फुलफिल होगा, N3 भी फुलफिल होगा, N2 भी फुलफिल होगा, N1 भी फुलफिल होगा। ठीक है, इवन दो यहाँ पर वी हैव ओनली 10 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट एंड वी आर गिविंग 62, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ 50-60 कंप्यूटर का मतलब वो आ जाएगा,
डेफिशिएंसी आएंगी 50 अराउंड कंप्यूटर्स की, मतलब हमारे पास में एक्सेस में जाएंगे, बट उतना उतना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हो सकता है आपके नेटवर्क में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, यहाँ पर 10 कंप्यूटर्स ऐड हो जाए, या +10 कंप्यूटर्स ऐड हो जाए, या +10 कंप्यूटर्स ऐड हो जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर एनहांसमेंट कितना भी किए तो आपके पास में स्कोप है थोड़ा सा। ठीक है, तो मतलब सारे नेटवर्क को फुलफिल करने के लिए हमारे पास में 62 का आंकड़ा इज द गुड वन। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ये दो दो सेक्शन हो गए हमारे। अब ये जो हम लोगों ने लिखा है इसको हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। अभी जो n=6 जो वैल्यू आई ना, इसको जरा ध्यान में रखना। 197.10.10.0000 ठीक है, सो 8 टाइम्स 0 लिख दिया। n=6 इंडिकेट दैट, देखो अब यहाँ पर एकदम टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, n=6, तो 6 मैंने जीरोस आपके मार्क कर दिया। अच्छा, आइडियली आपके जो इतने सारे बिट्स है ये आपके नेटवर्क के हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका नेटवर्क का है, और ये जो पार्ट है आपका ये होस्ट का है। ठीक है, आइडियली जो हम लोग ने देखा, बट मैंने आप लोगों को क्या बोला था, इन सबनेटिंग वी आर गोइंग टू बोरो सम बिट्स फ्रॉम होस्ट पार्ट ऑल्सो, वी आर गोइंग टू बोरो सम बिट्स फ्रॉम होस्ट पार्ट। तो होस्ट पार्ट से हम लोग लेंगे और उसको नेटवर्क बिट में ऐड करेंगे, बट नॉट फिजिकली, वी आर गोइंग टू डू इट लॉजिकली। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेटवर्क पार्ट के अंदर होस्ट पार्ट से कुछ बिट बोरो करेंगे और उसको अपने नेटवर्क बिट में ऐड करेंगे, बट लॉजिकली करेंगे, फिजिकली नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, द टाइम कम्स फॉर बोरोइंग द बिट्स फ्रॉम होस्ट पार्ट। ठीक है, तो n=6 इंडिकेट दैट 6 bit, just leave these 6 bit for the host part, just leave these 6 bit for the host part, and the remaining 2 bits will be added to the network part। ठीक है, ध्यान रखना ये 2 बिट को हम लोगों ने क्या कर लिया है, अपने नेटवर्क की पार्टी में, नेटवर्क कंपोनेंट में वी हैव एडेड दीज 2 बिट्स। ओके, देखो अभी तक इसको हम लोगों ने बस खाली बताने के लिए बता रहे, फिजिकली नहीं ऐड किया हम लोगों ने, इसको लॉजिकली ऐड किया। ठीक है, ओके, ये क्लियर है। उसके बाद में वी हैव सम कंसिडरेशन। ओके, वी हैव सम कंसीडरेशन। ठीक है, and what are those consideration, the consideration are that the consideration is that the host part is always considered as the zero bit। होस्ट मतलब होस्ट बिट जो होते हैं उनको हमेशा जीरो से इंडिकेट किया जाता है, और जो नेटवर्क बिट होते हैं आपके, जो नेटवर्क बिट होते हैं उनको हमेशा 1 से किया जाता है। ठीक है, जो होस्ट पार्ट होता है, जो होस्ट बिट होते हैं उनको 0 से इंडिकेट करते हैं, और नेटवर्क बिट को 1 से इंडिकेट करते हैं। अगर ये आप कंसिडर करते हैं तो आपका फिर यहाँ पर आप लोग देखो, कंसिडर कर लो, इसमें आपके 0 1 हो जाएंगे, तो इसका यहाँ पर आपका कन्वर्जन हो जाएगा। कन्वर्जन होगा कैसे, देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या करेंगे, ये दोनों जीरो को क्या करेंगे, 1 1 कर देंगे। तो चलो ये आपका 197 हुआ, ये आपका 10 हुआ, ये आपका 10 हुआ, और उसके बाद में आपके जो जो दो जीरो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 1। ठीक है, देखो मैंने फिजिकली उनको अपने अपने इसमें लिया नहीं हूँ, यहाँ तक ऑफिशियल बाउंड्री है, यहाँ तक जो देखो मैं आपको मार्क करके बता दूँ, यहाँ तक ऑफिशियल बाउंड्री है आपके नेटवर्क कंपोनेंट की, तो हम लोग उसको अंदर फिजिकली नहीं ले रहे हैं। हम लोग ने बोले भाई तो रहे वहीं पे, लेकिन काम हमारे लिए करेगा। ठीक है, तो ये आपकी जो दो जीरो, these 2 0 विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 1। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो 6 जीरो एज इट इज रखे हम लोगों ने, और ये 2 जीरो को 1 1 में कंसिडर वो कर लिए, कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब बोलते हैं इसको एक बार दोबारा आपके डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 197.10.10.1100 और 0000, इसको अगर आप कभी बाइनरी को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा बोलो। The simplest method to convert any binary 8 digit binary into decimal, and उसको twice वर्सा अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 8 4 2 1 16 32 64 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका 120। ठीक है, ये आप ये आपका कोड रहेगा सिंपल। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, तो 1 1 1 1 ऑल 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब जहां पर 1 है दोनों डिजिट को ऐड कर लो, 8 4 12 1 6 7 8 9
ये 19 और 1 का 1, क्या आ गया आपका 192, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कन्वर्ट एनी बाइनरी इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक है। आपको भी पता है ये चीज़, लेकिन मैंने आपको जैसे रेफरेंस के लिए बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हुआ 197.10.10.192, ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से मुझे बताओ कि पहले हमारा जो आईपी एड्रेस था 197.10.10.0, इसका इसका जो सीआईडीआर वैल्यू था वो कितनी थी बताओ। कोई मुझे बताएगा इसकी सीआईडीआर वैल्यू कितनी थी। What was the CIDR value for this IP address in the initial time? Initially, what was the CIDR value for this IP address? नहीं पता किसी को? Anyone? कौन बताएगा? नहीं पता सर। नहीं पता आप लोग को? अरे यार, अरे बाबा सिंपल सी बात है, रुको और उसको मैं वो कर लूँ। 197.10.10.0, ये बताओ कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? सी क्लास का, ठीक है। अरे हाँ या नहीं? बराबर। जब सी क्लास का आईपी एड्रेस है तो सी क्लास का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है बताओ मुझे। या चलो, अच्छा चलो, सी क्लास में कितने बिट्स आपके नेटवर्क पे होते हैं? इन सी क्लास हाउ मेनी बिट्स बिलोंग टू द नेटवर्क? 24। 24। 24 सर। 24, तो ये आपके तीन जो ऑक्टेट है वो 24 हो गए, और ये आपका 8 बिट हो गया। तो मतलब इसका मतलब जितने बिट, मैंने आपको हमेशा बताया हूँ कि सी आई डी आर वैल्यू वो वैल्यू रहती है जो ये इंडिकेट करती है कि हाउ मैनी बिट्स आर ऑन नेटवर्क। सीआईडीआर वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? वो ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारे कितने बिट्स नेटवर्क पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भले ही लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं लिखने को हमेशा ये लिखूंगा कि दिस इज /24। और आपको मैंने ये भी बताया हूँ कि अगर आपको 8, 16 और 24 की कोई सीआईडीआर वैल्यू दिखे, इसका मतलब सबनेटिंग नहीं हुई है, इसका मतलब सबनेटिंग नहीं हुई है। और अगर आपको इन वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू मिलती है, 8, 16, 24 के अलावा कोई अगर वैल्यू मिलती है, इसका मतलब उसकी सबनेटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आपको 8, 16, 24 मिलती है तो मतलब सबनेटिंग नहीं हुई है। और अगर कोई मिलती है, फॉर एग्जांपल 26 मिलती है, या 9 मिलती है, या 17 या 18 ऐसे कुछ मिलती है, तो मतलब इसकी सबनेटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे बताओ इसकी सबनेटिंग हुई है 197.10.10.0/24। तो /24 मतलब इसकी सबनेटिंग नहीं हुई है। नहीं हुई है, इसीलिए तो हम लोग सबनेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो /24 मतलब सबनेटिंग नहीं हुई है और हम लोग अब सबनेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद में, अच्छा ये अभी हो गया आपका 192, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, चलो ओके। सो यहाँ तक हम लोग ने किया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्लियरली देखा कि हम लोगों ने 2 बिट को अपनी पार्टी में ऐड किया, ठीक है। तो 2 बिट को जब अपनी पार्टी में, पहले क्या था 24, पहले क्या था यहाँ पर देखो, पहले 24 था, और ये हम लोग ने 2 बिट्स, होस्ट के 2 बिट्स हम लोगों ने अपने अंदर ऐड कर लिए। क्या कर लिए? अपने नेटवर्क कंपोनेंट में ऐड कर लिए। तो 24 प्लस 2 बिट कितना हो गया आपका? अरे बोलो कितना हुआ? 26। 26 हुआ। तो ये जो 26 हुआ, अब जो हम लोग अभी लगाएंगे 197.10.10.192/26। अच्छा, अब इस आईपी एड्रेस को आप लोग देख के कोई भी बता सकता है कि इसकी सबनेटिंग हो चुकी है, इसकी सबनेटिंग हो चुकी है, ओके। तो अब यहाँ हम लोग को ये आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज देखना है, ठीक है। अब आपके जो सबनेट बनेंगे वो कितने कितने स्लॉट के बनेंगे? आपके जो सबनेट बनेंगे, एक तो आप लोग अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हम लोग ने जो n = 6 कंसिडर किए थे, उसमें वैल्यू हम लोग को 64 आई थी, मतलब ये हमारे 64
जो मतलब होस्ट का एक सबनेट बनेगा, मतलब एक होस्ट में 64 होस्ट, एक होस्ट में सॉरी एक सबनेट में 64 आईपी एड्रेस, दूसरे होस्ट में 64 आईपी एड्रेस, तीसरे होस्ट में 64 आईपी एड्रेस एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा हम लोग के बनने वाले हैं। चलो आप हम लोग देखते हैं फटाफट, एक अभी 5 मिनट का काम रहेगा हम लोग का, ये मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। अब आते हैं हमारे सबनेटिंग बनाने में। देखो ये डायरेक्ट मैं आपको डायग्राम से भी बता सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग डायग्राम देखो पहले, ये हमारा आईपी एड्रेस है 197.10.10.11, ये हम लोग के 2 बिट्स जो के कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, ये 2 बिट्स जो हम लोगों ने कन्वर्ट किए हैं। अब यहाँ पर एक और ट्रिक है कि आपके जो सबनेट्स रहेंगे उसमें कितनी आईपी एड्रेसेस रहेंगे, वो कैलकुलेट करने की एक और ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि देखो जो मैंने 1 को मार्क किया हूँ, डार्क से मार्क किया हूँ, इसके पहले वाले डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 को एकदम डार्क मार्क किया हूँ, तो वो जो आपकी पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है। देखो ये जो 1 है आपके 64 वाली है। ठीक है, जो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये 64 आती है। तो मतलब आपके जो सबनेट बनेंगे, ये सिंपल एक ट्रिक है, आप कहीं भी अप्लाई करो तो वो अप्लाई हो जाएंगे आराम से। तो उसके उसके अलावा दूसरी ट्रिक ये भी है कि आपके जो आपने जो n इक्वल टू 6 वैल्यू लिए थे, तो 2 रेस टू n, मतलब सिंपली अगर आप करेंगे तो n की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे 6 ली है, तो इट बिकम 64। तो ये भी इसी भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, पीछे जाते हैं और हमारे सबनेट बनाते हैं। ठीक है, अब आपको ये आईपी एड्रेस मालूम है कौन सा आईपी एड्रेस है ये। ठीक है, तो हमारा आईपी एड्रेस है अभी 197.197.10.10 डॉट क्या है 1100 11000000। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएंगे 197.10.10.192। ठीक है, आई थिंक 192 है बराबर। ठीक है, अब इसको क्या बनाना है, आपको सबनेट बनाना है। चलो बनाते हैं फटाफट, टाइम खत्म हो रहा है। दिस इज माय सबनेट नंबर 1। ठीक है, और हर सबनेट रहेगा, ईच सबनेट विल बी ऑफ 64 होस्ट। ठीक है, 64 आईपी एड्रेसेस का रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करो 197.10.10। एक बात याद रहे, वाइल डूइंग द सबनेटिंग यू डोंट हैव टू टच द नेटवर्क पार्ट। और मुझे ईमानदारी से बताओ इसमें जो नेटवर्क पार्ट है वो कौन सा है आपका, ये वाला पार्ट है। मतलब कि 3 ऑक्टेट को आपको छेड़ना ही नहीं है, जो कुछ करना है वो इसी में करना है। ठीक है, तो दिस इज माय नेटवर्क पार्ट, दिस इज माय होस्ट पार्ट। ओके, इसमें से भी हमारे जो है ना ये 2 बिट जा चुके हैं, 2 बिट इसमें जा चुके हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस। तो हमको ये बात समझ में आई कि वाइल परफॉर्मिंग द सबनेटिंग वी डोंट हैव टू टच दिस नेटवर्क पार्ट। आप होस्ट पार्ट को जितना छेड़ना है छेड़ो, लेकिन नेटवर्क पार्ट को जहाँ छेड़ेंगे वहां पर आपका काम खत्म। ठीक है, तो नेटवर्क पार्ट को कभी नहीं छेड़ेंगे। सी सबसे पहले हम लोग ने सबनेट बनाए 197.10.10, तो पहले हम लोग ने ऐसे लिख लिया डॉट सबसे पहला आपका जो सबनेट बनेगा वो 0 का बनेगा। ठीक है, तो 0 का बनेगा, यहाँ से आपका स्टार्ट करेंगे स्लैश ये आपका रहा 26। ठीक है, सबनेट नंबर 2 बना दो 197.10.10 डॉट, पहला ने बनाया 64 का। ठीक है, तो 0 से लेकर अब मतलब आपका जो भरेंगे तो उसके बाद में आपका यहाँ पर आ जाएगा सेकंड सबनेट। ठीक है, तो 64 नहीं होता, उसमें से भी एक आध एड्रेस आपका जाता है कुछ इनिशियलाइजेशन वगैरह के लिए, ये आपका सेकंड सबनेट बन जाएगा। थर्ड सबनेट अगेन आगे 64 ऐड करते जाओ 192.10.10.64 क्या गया हमारा बन गया 128। तो रैंडमली हम लोग बनाते जा रहे हैं। ठीक है, यह हमारा बन गया थर्ड सबनेट। सबनेट नंबर 4 हम लोग बनाते हैं 197.10.10 डॉट, अब बोलो तो आपके 128 के आगे तो 192 ये आपका जा रहा है। ठीक है, ये आपका 4 सबनेट है, 4 सबनेट भी आपका बन गया। चलो फिफ्थ सबनेट बनाते हैं 197.10.10 डॉट, अब बोलो 192 प्लस 64 ऐड करो, अरे बोलो जल्दी, 192 प्लस 64 ऐड करते जाओ उसके अंदर। 256। 256। अब जरा ईमानदारी से बताओ, इस शक्ल का आईपी एड्रेस पहले जिंदगी में कभी आप लोग ने देखा है? नो। नो। नहीं सर। तो मतलब सबनेटिंग पॉसिबल है आगे? नहीं पॉसिबल है। मतलब कि हमको नो। कितने सबनेट्स बनेंगे, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से जो कि क्लास सी का है, जो कि क्लास सी का है, और हम लोग खाली यही कंपोनेंट को छेड़ रहे हैं खाली। ठीक है, तो इससे कितने सबनेट पॉसिबल है, 1 2 3 4, ओनली 4 सबनेट्स आर पॉसिबल। अगर आप फिफ्थ बनाने जाएंगे
तो फिर आप क्या हो जाएगा, आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा और आपको नेटवर्क चेंज करना नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बाद में और लूँगा, और वो एग्जांपल हम लोग एक क्लास ए का लेंगे, क्योंकि क्लास ए के अंदर वी हैव ओनली 8 बिट्स बिलोंग टू द नेटवर्क पार्ट एंड 24 बिट्स बिलोंग टू द होस्ट पार्ट। तो जो ज़्यादा बिट आपके होस्ट के रहेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा सबनेट बनेंगे। तो वहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल बाद में लेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ हाउ मेनी सबनेट्स आर पॉसिबल? ओनली 4 सबनेट्स आर पॉसिबल, ओके। और 4 सबनेट के अगर आप आगे जाएंगे तो ये इस शक्ल का आपको आदमी यहाँ पर मिल जाएगा, ये शक्ल का आईपी एड्रेस मिल जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और जब नहीं पॉसिबल है तो हम लोग को ये नहीं बनाना है, ठीक है। तो ओनली 4 सबनेट्स आर पॉसिबल। तो इसी आप लोग को सर आपने 64 ही क्यों लिया, वो इसमें एक्सप्लेन करो। 64 आपको मैंने इसलिए यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक तो ये है। तो सबसे पहले तो आपको आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, जो मैंने वैल्यू लिया था एन की वैल्यू, जो मैंने एन की वैल्यू लिया हूँ, कहाँ पर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। 6 आई थी। एन की वैल्यू 6 आई थी, एन की वैल्यू जो 6 आई थी ना, ये हम लोगों ने, अरे यार, हम्म, बहरहाल जो एन की वैल्यू हमारी 6 आई थी, तो उससे हम लोग को मिला था 64। मतलब ये हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किए थे कि कितने हम लोग रेंज क्या ले। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप n इक्वल्स टू 7 पे जाते, एग्जांपल n इक्वल्स टू 7 पे जाते, तो 64 इंटू 2 कितना हो जाता आपका 120 है, ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट तो खाली 40 कंप्यूटर्स का है, जो कि 64 में भी हो सकता है। इसके लिए वो एक तो आपने वो 64 लिया कि आपके जो सबनेट है, कि अगर आप 64 का लेंगे तो उसमें आपका 40 भी फुलफिल हो जाएगा, 20 भी फुलफिल हो जाएगा, 30 भी फुलफिल हो जाएगा, 10 भी, मतलब अलग अलग, सब अलग अलग। तो भले ही 40 फुलफिल होने के बाद में हमारे पास में फिर भी 24 कंप्यूटर्स का रिक्वायर, मतलब एक हमारे पास में एक्सेस में बचता है, ठीक है। तो हम लोग n इक्वल्स टू 5 नहीं ले सकते, n इक्वल्स टू 5 लेंगे तो कितना होगा 32, है ना। 2 हाँ 32 होगा, 32 माइनस 2 करेंगे आप बेसिकली, तो 30 आपको उसमें रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने n इक्वल्स टू 6 लिया, ठीक है, पहली चीज़ ये। और 6 लेने के बाद में जब उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2n-2 करके किया, तो हम लोगों को 62 मिला। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर अपने जो सबनेट्स बनाए वो 64 के बनाए। देखो आप थोड़ा सा अगर एक आउटर माइंड से भी सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो 60 का अगर हम लोग 64 का अगर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एन द फार्मूला विच वी हैव बीन गिवन 2n-2, तो उसके हिसाब से भी हमारे सबनेट यही बनना चाहिए। हमारा जो आंकड़ा आना चाहिए, जो वैल्यू आना चाहिए, वो ये आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज n इक्वल 7 पे हम लोग जा नहीं सकते, n इक्वल 5 पे रह नहीं सकते। तो n इक्वल 6 कंसिडर किए, 64 वैल्यू मिली। या और एक आपको ट्रिक मैंने ये बताया कि जैसे कि यहाँ पर आपका आपने जो कन्वर्जन किए, आपने ये 2 बिट को कन्वर्ट किए, आपने ये 2 बिट को कन्वर्ट किए, किस में कन्वर्ट किए, अपने होस्ट पार्ट में कन्वर्ट किए। तो जब होस्ट पार्ट में कन्वर्ट किए तो एज अ होस्ट पार्ट इट बिकम्स 1, ठीक है। तो 0 से 1 में वो कन्वर्ट हो गया। तो जो आपका बिट जहाँ से आपने कन्वर्जन किए, तो वो बिट के ऊपर इमीडिएटली आप देखो कौन सी डेसिमल वैल्यू है, सो इट इज 64। तो ये भी एक ट्रिक है जानने की कि हमारे जो सबनेट बनेंगे ये कितने आईपी एड्रेसेस के बनेंगे, मतलब सबनेट की साइज क्या रहेगी। तो 64 की साइज रहेगी, ऐसा हम लोगों ने कंसिडर किया। एक और जो एग्जांपल हमारा आगे है उसके अंदर हमारे हम लोग चेंज करेंगे, तो हो सकता है उसके अंदर चेंज हो, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप कभी ये वाला फर्स्ट सबनेट 197.10.10.0 अगर आप कभी ये सबनेट अपना फर्स्ट नेटवर्क में लगाते हो, मैं आपका फर्स्ट नेटवर्क ये वाले नेटवर्क में, तो हो गया, आसानी से हो गया ये आपका। उसके बाद में सेकंड सबनेट लिया आपने 197.10.10.64, तो आपने इसको इसको लगा दिया, तो ये भी इसमें नेटवर्क हमारा, ये भी नेटवर्क के जो रिक्वायरमेंट थे ये भी फुलफिल हो गए। थर्ड सबनेट हम लोग ने यहाँ लगा दिया, फोर्थ सबनेट हम लोग ने यहाँ पर लगा दिया, तो सब रिक्वायरमेंट्स हमारे फुलफिल हो गए। हमको ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर अलग अलग आईपी एड्रेसेस लेने की, ठीक है। एज इट वॉज क्लास सी आईपी एड्रेसेस, हाउ मेनी होस्ट वर पॉसिबल, अराउंड 256, नहीं 2:8, 2:8 माइनस 2 कर लो, तो 2:8 आपका बनता है अराउंड कुछ 256 समथिंग कुछ बनता है, ठीक है। तो 256 माइनस 2 करेंगे 254, तो मतलब आपके आपके पास में जितने भी कंप्यूटर है सबका रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल हो सकता है, ठीक है। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस था, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर विच आई फाउंड यूजफुल, ओके। और इसके अलावा बहुत सारे, अभी मुझे आपकी क्लास के एक स्टूडेंट ने मुझे एक शीट शेयर किया था,
तो हो सकता है कि मतलब वो शीट भी बेनिफिशियल हो, बट आई डिड नॉट मतलब मैंने इसके ऊपर वर्क नहीं किया, बट आई फाउंड के दिस ये मतलब फिजिबल है, और दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड यू कैन हैव इन ऑर्डर टू राइट इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो ये स्टेप्स मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है, आपका आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के अंदर जो आपके नेटवर्क कंपोनेंट है उसको एज इट इज रखो, होस्ट कंपोनेंट को पहले बाइनरी में डिवाइड करो, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद में यू नीड टू सर्च फॉर द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, हाउ मेनी नेटवर्क्स यू हैव राइट नाउ, 1 2 3 4 5, जितनी भी आपके मतलब क्या है आपके नेटवर्क्स है, ठीक है। अच्छा बोलो, अगर कभी यहाँ पर हमारे पास में एक और नेटवर्क होता तो, हाँ दानियल, जी सर। हमारे पास में अगर एक और नेटवर्क होता जिसका रिक्वायरमेंट कुछ 20 30 40 का ऐसा कुछ होता, तो क्या करते हम लोग, बिकॉज हमारे इस आईपी एड्रेस से तो ओनली चार चार सबनेट पॉसिबल हुए, अगर होता तो क्या हम उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते? नो सर। नहीं, ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग सबनेटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द होस्ट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ अपने दूसरे एक डायग्राम में लिखा हूँ, आप लोग को इसमें नहीं लिखा हूँ, सी देखो जहाँ पर कर्सर आ गया, अकॉर्डिंग टू द होस्ट रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क रिक्वायरमेंट, while subnetting you need to make sure that what are the requirements, because based on the requirement you are going to perform the subnetting। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं पता आप सबनेटिंग नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली जब तक रिक्वायरमेंट्स नहीं पता आप सबनेटिंग नहीं करेंगे, वो भी आप मैक्सिमम लिमिट लेके। तो मैक्सिमम लिमिट हम लोगों ने 40 कंसिडर इसीलिए देखे थे हम लोगों ने कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के, इसीलिए हमारा जो 64 आया है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने 64 के सबनेट बनाए हैं, ठीक है। अरे भाई ठीक है, हाँ सर। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये भी आप लोग के पास में आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग में ये चीज़ आ ही जाएंगी। फर्स्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हाँ, एक और एग्जांपल है हमारे पास में, मैंने अपने वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बताया हूँ, तो जो मैंने वीडियोस